प्रोडक्ट बेस्ड में भी काम करती हैं और ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी भी। क्यों क्वेश्चंस दे वर आस्किंग लाइक फ्रॉम सी शार्प बेसिक्स क्या क्या करें हैं, इंटर्नशिप क्या करी हैं, जनरली दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड। आप अपना टाइम को स्मार्टली कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप पहले फिनिश करिए 30 तक का डीएसए। तो किसी को भी रिज्यूम में बेसिकली जो आता है वही लिखना चाहिए। हाँ, भले ही आपको कम आता है आप कम लिखो। Hello everyone, hope you are doing good. I'm Ayn Singhal. Welcome back to the channel. This is my second video in BVP placement series. First video was about interview experience of ZS Associates. Link is in the description. Do watch it. Today's podcast is about interview experience of Crystal Smart Solutions. So Jatin Nirvani is here. He will be sharing his preparation strategy and the interview experience for Crystal Smart Solutions. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो जतिन, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू मैंग फॉर वेलकमिंग टू योर चैनल। जतिन, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में। My name is Jatin and I am studying in Bharati Vidyapeeth College of Engineering in Computer Science branch. आप बताएंगे क्रिस्टल स्मार्ट सॉल्यूशंस के बारे में, बेसिकली क्या कंपनी है, ये क्या करती है? Basically, Crystal Smart Solution is a hybrid company. ये प्रोडक्ट बेस्ड में भी काम करती है और ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी भी है। प्रोडक्ट बेस्ड में इस कंपनी ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप कर रखते हैं, जैसे रोल पे, क्लाउड पे और गेट पे। बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट हैं जो ये कंपनीज को बेचते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड इन कंपनी पर्सपेक्टिव, इट हैज इट ओन प्रोडक्ट कॉल्ड रोल पे, which is a very good product for managing salaries and attendance of their employees, and it is cross-selling this to many other companies. From service-based perspective, it is developing tailor-made software for their clients, like other companies do, like TCS, still do for their clients. The similar job is done in Crystal also. तो क्या रोल ऑफर किया एंड क्या पैकेज ऑफर किया है? Crystal Smart Solution offered me a front-end web developer role, and the package was 12 LP CTC. ये हमारे कॉलेज में ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी। Yes, it was a dream opportunity. Company above 12 lakhs, that 12 LPA in our college enters into a club of dream companies. ओके, सो अब बेसिकली राउंड्स बता दीजिए क्रिस्टल स्मार्ट सॉल्यूशंस के। Basically, there were two rounds. First round was a written test, and the second round was interview. In first round, we were given a written test, and which was mix of both MCQs and coding round. Both were in the same test only. In MCQ questions, they were asking like from C Sharp. Basically, the company is focusing on C Sharp and .NET developers. The work of backend is in C Sharp. So questions were from C Sharp. Then some database questions like SQL related questions. Then there were some JavaScript and web development questions like HTML, CSS. Basically, it was a mix of both, like front end and development, both types of questions were there. And in the second part of the test, there was a two coding questions. Basically, first was to find vowels, and then second question was use of switch statement. You have to write any program of your choice, and you have to explain the switch statement in this in your program. Then after that, we have given the test. It was around like for 1 hour, and the company team has taken the test and they have shortlisted some student, like around 13 to 14 students were shortlisted. Then the interview process started. आपने इसके लिए जो एमसीक्यूज और कोडिंग क्वेश्चंस थे, आपको ज़्यादा टफ लगे एंड कहाँ से प्रिपेयर किया था आपने? Like questions were not tough. I would like to say that कि क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं थे। क्वेश्चन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट को भी देखा है, वेब डेवलपमेंट करी है, वो इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। सी शार्प मैं कह सकता हूँ अगर किसी ने नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी सी शार्प या C++, उनके लिए वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो एक बार अगर क्रिस्टल का अगर टेस्ट दोगे फ्यूचर में कभी, तो एक बार सी शार्प या C++ के आपको क्वेश्चन देखनी चाहिए MCQs गीक फॉर गीक से। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था आपसे? इंटरव्यू में पहला तो क्वेश्चन से जो हमने रिटन टेस्ट में कोडिंग क्वेश्चन करे थे, उसी से रिलेटेड ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच और जो हमने अप्रोच यूज करी है उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी। तो लाइक मैंने फॉर लूप का यूज कर रखा था उसमें वॉबल्स में, तो मेरे से क्वेश्चनिंग हुई थी कि मैं इसे और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने बताया था कि अगर हम इसे स्विच केस लगा देंगे तो ये और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और भले दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओ एन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है स्विच में कि वो कॉल स्टैक मेंटेन कर लेता है,
तो जिससे कि और भी फास्ट हो जाएगा हमारा आंसरिंग। तो ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। सेकेंडली उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, फिर वो वेब डेवलपमेंट पे था, जैसे मैंने रिज्यूमे में मेंशन करा था फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए। तो सारे फिर वो वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन थे मेरे से, जैसे जावास्क्रिप्ट रिलेटेड, ट्रिपल इक्वालिटी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या होता है, और बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके। सो बाकी चीज़ें आपसे रिज्यूम के बारे में ही पूछी गई थी, आपके प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स के बारे में? हाँ, प्रोजेक्ट्स क्या-क्या करे हैं, इंटर्नशिप क्या करी हैं, जनरली दीज़ क्वेश्चन्स वर आस्क्ड। लाइक मैंने प्रोजेक्ट्स वो करे थे, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी और एक म्यूज़िक प्लेयर बनाया था। तो उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन्स पूछे गए थे। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उनके इंटरव्यू में भी लाइक रिज्यूमे डिस्कस किया था उनसे? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई थी, लाइक किसी केस में प्रोजेक्ट्स ही पूरा डिस्कस हुआ था, किसी में सर ने जो क्वेश्चंस पूछे थे प्री डिफाइंड वही डिस्कस हुए थे। तो इट वाज लाइक अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर एवरी पर्सन। लाइक किसी की ओके, फील्ड मशीन लर्निंग थी तो मशीन लर्निंग भी डिस्कस हुई थी। ओके। एंड व्हाट अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स? कोर सब्जेक्ट्स में से पूछे गए थे क्वेश्चंस? कोर सब्जेक्ट मेनली आई वुड लाइक टू से दैट कि ओनली डेटाबेस database is discussed from core subject, not operating system or and computer networks not were not discussed. बाकी इसके बाद कोई राउंड था? इसके बाद हमारा जैसे जो सेलेक्टेड थे उनसे फिर एक यू कैन से लाइक एक एचआर टाइप राउंड हो गया था, जैसे हमें पूछ रहे थे कि आपने पास और के ऑफर हैं, और कंपनीज के कितने ऑफर हैं, और आपको कंपनी कैसी लगी, कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली एक टाइप का कंफर्मेशन टाइप राउंड था वो, लाइक वो कंफर्म हो सकें कि आप उनकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। ओके। सो आप अभी इस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, सो आपको इस कंपनी का लाइक एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है एंड इसका वर्क कल्चर कैसा है? पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा, लाइक ये क्रिस्टल स्मार्ट सॉल्यूशन दिल्ली बेस्ड है, मुंडका इंडस्ट्रियल बेस्ड। तो आपको सेम इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जैसा आप सोचते हो। जैसे कोई भी कंप्यूटर साइंस डेवलपर सोचता है कि वो नोएडा या गुड़गांव में किसी का एमएनसी में जॉब करेगा तो उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, ये थोड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो आपको थोड़ा सा इसमें अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अडेप्ट कर लोगे तो कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। और जो अभी आपके सीनियर्स होंगे वो भी अच्छे हैं, सब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप कहीं फंसते हो कोड वगैरह में तो आपको इजीली एक्सप्लेन कर देते एंड एनी लाइक थिंग यू वांट टू मेंशन फॉर आवर लाइक जूनियर्स, उनका प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, तो आप कुछ उन्हें मेंशन करना चाहेंगे, या तो क्रिस्टल स्मार्ट के लिए या कोई भी अलग अपॉर्चुनिटी जो कॉलेज में आती है उसके लिए? हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो बेसिकली सबसे मेन चीज़ जो होती है हमारे उसमें वो होता है डीएसए। डीएसए और प्रोजेक्ट्स, दीज आर द बैकबोन। आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। तो डीएसए करने के लिए आपको ना पूरा कुछ मैंने देखा है, जैसे मेरे जो कलीग्स भी हैं, ज़्यादातर लोग डीएसए जो करते हैं ना वो बहुत डीप चले जाते हैं डीएसए में। और हमारे में कॉलेज में इतनी बड़ी कंपनीज आती हैं प्रोडक्ट बेस्ड जो सिर्फ डीएसए ही पूछें, फिर उनको प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो आप अपना टाइम को स्मार्टली कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप पहले फिनिश करिए ट्रीज तक का डीएसए, लिंक लिस्ट कीजिए, एरेज कीजिए, स्टैक कीजिए, क्यूज कीजिए, ट्रीज को अच्छे तक कर लीजिए। फिर ट्रीज के बाद आप शिफ्ट हो जाइए प्रोडक्ट पे। आपको आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो भी फील्ड है, आपको वेब डेवलपमेंट अच्छी लगती है आप वेब डेवलपमेंट बनाइए, या फिर आपको डेटा साइंस अच्छी लगती है आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग किसी में भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट आपको एक प्रेजेंटेबल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो आपको मेंशन कर सको, आप ऑन द स्पॉट इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो। जो प्रोजेक्ट ऑन द स्पॉट इंटरव्यूअर देख लेता है ना, उसका अलग इंप्रेशन पड़ता है। लाइक अगर आपने कोई वेबसाइट अपनी डिप्लॉय कर रखी है और आप उसे अपने फ़ोन में खोल के दिखा दो इंटरव्यूअर को, तो उसको एक अपना अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज़ दे सकते हैं आप हमारे जूनियर्स को, या कुछ लाइक क्या प्रोजेक्ट्स बनाए? वेब डेवलपमेंट में सबसे बेसिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, एक होती है सबसे पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसमें आप अपना रिज्यूमे के बारे में बता सकते हो कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल से चालू करा, फिर आपने क्या-क्या एजुकेशन ली है, फिर आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये एक टाइप का रिज्यूमे ही हो गया आपका, जो आपने एक वेबसाइट पे होस्ट कर रखा है। सबसे पहले तो आप ये काम कर सकते हो। सेकेंडली आप एक दूसरी वो वेबसाइट बना सकते हो जो एक इससे एक स्टेप अहेड हो। लाइक आप कोई भी डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो, डायनामिक वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। उसके अंदर आप बना सकते हो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स में आप दिखा सकते हो कि एक बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको बाय कर सकते हो। एक पेमेंट गेटवे इसमें लगा सकते हो, ताकि जो भी यूज़र है वो पेमेंट करके उसको बाय कर सके। एक आप इसका डेमो भी आप अपने इंटरव्यूअर को शो कर पाओगे इसके लिए। सेकेंडली आप इसमें सिमिलर टाइप से आप एक सोशल मीडिया ऐप बना सकते हो,
जिसमें लाइक फेसबुक जैसा, जिसमें आप क्लोन टाइप भी बना सकते हो कि आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप अगर बना लोगे, 3 बेसिक प्रोजेक्ट भी अगर आप वेब डेवलपमेंट में बना रखे हैं, तो आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंटरव्यू के ऊपर, आपके चांसेस बढ़ जाएँगे सेलेक्ट होने के। ओके। प्रोजेक्ट्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हो। लाइक बहुत सारे लोग जो करते हैं कॉपी पेस्ट वाले प्रोजेक्ट, वो वाले इनको नहीं चाहिए थे। और उनको ये चाहिए था कि अगर किसी ने प्रोजेक्ट्स नहीं भी बनाए हैं, लेकिन उसको टैग की नॉलेज है, जो भी टेक स्टैक वो अपने उसने रिज्यूमे में लिख रखी है, तो उसको भी वो हायर कर रहे थे। बेसिकली एंड दे वर चेकिंग व्हाट रिज्यूमे में लिखा है, उसको आप में कितना आपको वो आता है। तो किसी को भी रिज्यूमे में बेसिकली जो आता है वही लिखना चाहिए। हाँ, भले ही आपको कम आता है, आप कम लिखो, लेकिन आपको लिखना वही है जो आपको आता है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में, रिज्यूमे को अच्छा बेटर करने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी जो आपको नहीं आती, तो आपको इंटरव्यूअर फँसा लेगा। So it was nice talking to you, Jatin. Thank you for taking out time थैंक यू मैम। and all the best for the future. थैंक यू मैम। If you like the video, do hit the like button and share this video among your friends and college groups. Don't forget to subscribe to the channel. You can follow me on my social media handles, link in the description. Do check it out. Till then, bye everyone. See you in the next video.